Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. प्रमोशन कितना थकाने वाला होता है, एक ही बात को अलग लोगों को अलग अलग तरीके से कहना, हम ये किरदार निभा रहे हैं, हम ये किरदार निभा रहे हैं। You know, मुझे लगता है कि अगर आप enjoy करो ना तो फिर आप थकते नहीं हो। और ज़्यादातर मैं अकेले इंटरव्यूज़ करती हूँ, पर जब साथ में जैसे आज मलिश्का और नेहा है, कल मानव थे, तो मज़ा आता है, you know, because एक दूसरे से बात होती है, मस्ती होती है इंटरव्यूज़ करते करते। एंड I've really learned to enjoy promotions, नहीं तो आप मर जाओगे। I feel the same way, but I just feel कि you know, क्योंकि हम अपनी फिल्म के बारे में इतनी बात करते हैं, and I think it's just the nature of it जैसा है, और हम लोग आपके ज़रिए, because we can't go to all the millions and millions of people who actually we want to invite, but this is our invitation, so through you all. तो जब किसी को invite करते हैं तो बहुत ही आदर और प्यार के साथ और सम्मान के साथ invite करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, and then finally when the party happens we'll sit back and enjoy it. Okay, बातें करते करते कई चीज़ें सामने आई ना, I was you know hearing everything. एंजल की क्या स्टोरी है, नेहा, वो जानना चाहूँगी। किसकी? एंजल। Yes. She gave you something. Yes, so Vidya, I still have the angel with me, मेरे wallet में हमेशा रहती है, और विद्या नहीं, angel. But I wish, yeah, Vidya's credit card was in my wallet, but that's not true. But she was. Please silence. So yeah, it was very sweet of her. उस वक्त हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे. I mean, we met socially and we all know about each other. But I kind of started getting close to Vidya, and then she finally came and she called me and she said, I've got something for you. And she was like, pick one. And she gave me this beautiful white looking angel, and there was this brown looking angel. I picked up the brown one. It was gorgeous. और उन्होंने मुझे कहा ये रख लो, सब ठीक हो जाएगा. Not to say things weren't okay, but she kind of like preempted, and then it was one thing to another, and she's very concerned about the fact, and she takes it upon herself, and she takes it very personally that I'm single. So she's like, नहीं हो ही नहीं सकता. Like, how is it possible that you're single and I'm going to इतनी खूबसूरत लड़की, single. No, I tried matchmaking. No, but I failed. I know, and this I realized question. she doesn't need me to matchmake her. You know, can I please answer this question? I want to tell everybody, and I'm sorry this question is for you, Vidya, but I want to tell everyone, Vidya is by far the worst matchmaker you'll see, because somebody will be like, ये लड़का अच्छा लगा? She's like, and before you can answer, and mostly my answer will be no, because on the outside I may look all cool and all, very conservative, but I'm just like, and she's like, come here, one second, and वो आके बैठ जाता है. Sitna, we'll click a photo. अच्छा ठीक है, मैं चाय पी के आती हूँ. And she'll move like 3 steps away and she'll be like, nice na? No, you don't. She has no skill. So, you know, like, it's okay. Like, her giving me an angel just to make me happy is fine. But then dawning upon me, and she's just like anything but an angel when she tries to matchmake. ऐसा कौन सा लड़का होता है जिसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है? बहुत. सर आप पूछो मत. इनका मसला she'll be like, आप सिंह. Yeah, he's also single. Like, this is how she matchmakes. But ऐसे ही जानना चाहती थी लड़कों को दिखा के कि इनका टाइप क्या है, पर समझ में नहीं आया. जिसको दिखाती वो कहती कि कोई नहीं. हाँ, कोई नहीं. No, it wasn't that. I realized she had her own setting. देखा? That's what I mean. जब खुद से कुछ नहीं होता, मेरे बारे में बोलते रहो. Okay, the buzz is really positive around the film. चाहे वो promo की बात हो, teaser की बात हो. Do you think the half of the battle is won? एक बार teaser को लोग पसंद करने लगते हैं. Teaser और teaser are the face of the film. एक बार उसको पसंद करने लगते हैं लोग, बात तो आधी जन जीती जाती है. Do you agree with this? Or you're still waiting for the Friday? No, of course waiting for the Friday, because actually जब लोग फिल्म देखते हैं तभी real reactions मिलते हैं. पर हाँ, the first step has been received very well, which is the teaser and the trailer. Even the songs, बन जा तू मेरी रानी, तो जैसे it's become a rage, which is great. You know, that's what keeps us going through the promotions. जब इतना positive response मिलता है तो हमें लगता है कि, you know, let's try and tell more and more people that our film's releasing on the 17th of November. But of course Friday is very, very final. Yeah.
ओके चलिए, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों की फिल्म के लिए। हमने देखा कि जिस तरह से विद्या जी आप दूसरी बार आरजे बन रही, पहली बार भी हमने देखा था हर जगह वो पॉपुलर हुआ था, और अब जिस तरह से हम देखे, आपको नहीं लगता कि जितने रियल आरजे हैं उन सबका जॉब आप अब नहीं मतलब हर जगह इनके हमने मुन्ना भाई में नहीं, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट यू नो मैं आरजे की एक्टिंग कर सकती हूँ, पर ये जिस तरह से बोलते हैं ना, ये बहुत बोलने से पहले ऑन द स्पॉट सोचते हैं, दे लिटरली थिंक ऑन देयर फीट, और उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, और नहीं भी होता तो ऐसे जताते हैं कि होता है, हम किसी तरह उलझा के आपको कंफ्यूज करके वो छोड़ देंगे, पर हाजिर जवाब हैं आरजेस, और यू नो दे हैव टू हैव दिस एनर्जी ऑल द टाइम। वो थके हुए हों, तबीयत खराब हो, फिर भी हमेशा उनकी एनर्जी हाई होती है। आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब। आई डोंट थिंक उनको मुझसे कोई खतरा है। That's why I'm the perfect choice for this role, you see. लेकिन आई थिंक अब हर जगह साड़ी वाली भाभी की डिमांड ज्यादा होने वाली है। आप तो साड़ी पहनते हैं ना? हाँ, बहुत क्या बात कर रहे हो, वो मेरे वीडियो में नहीं देखा, मुंबई नहीं पहनी थी उसमें नहीं पहनी थी साड़ी उसमें, मगर मैं विद्या से बहुत कुछ सीख रही हूँ। उनमें से एक साड़ी पहना वो बहुत इजीली कैरी करती हूँ। उनके पास एक अलादीन की गुफा है जिसमें बहुत सारी साड़ी बताया ना, हाँ, तो वो वाला सीन है। मगर पिक्चर में मुझे लगता है रेडियो एक बार फिर से हीरो बन जाएगा इन अ वे, और हमारी हीरोइन तो है ही, और हीरोइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस फिल्म जो आप देखेंगे, इसके जो भी इसको देख रहा है ना, वो एक तो हंसते हंसते बाहर आएगा, मुझे लगता है कहीं पे कोने में इन सब चीज़ों के साथ आपको ऐसी पॉजिटिविटी महसूस होगी कि ऐसी औरत एग्जिस्ट करती है, और अगर वो विद्या बालन जता रही, इट्स वेरी यू नो रिलेटेबल, तो शायद मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, शायद मैं भी सपने देख सकती हूँ, शायद मैं भी, आई नॉट नेसेसरली टू बी एन आरजे, बट वॉट एवर इट इज़, मे बी आई कैन डू इट। आई रियली लव दैट अबाउट दिस फिल्म। आई थिंक सुरेश त्रिवेणी जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से कहानी लिखी है, यू नो कोई भी इससे रिलेट कर पाएगा, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, और ज़्यादातर भारत जो है मिडिल क्लास में ही रहता है, मतलब मिडिल क्लास ही है, तो आई थिंक इट्स वेरी, और सबके ड्रीम्स होते हैं, सबके एस्पिरेशंस होते हैं। सडनली आपको ये लगेगा कि हाँ, अगर इस तरह की औरत जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह का जॉब कर सकती है और अपने परिस्थिति में वो खुश रह सकती है, तो शायद मैं भी कर सकती है। नेहा जी, आप बताइए, आप तो सबकी मतलब बॉस है कि ये कंटेंट चाहिए, ये चाहिए, साड़ी वाली भाभी चाहिए, सब कुछ, तो बताइए कि सबका बॉस बन के कैसा रहा आपका ये, क्योंकि हम डिफरेंट आपको फिल्मों में डिफरेंट किरदार देखते हैं, लेकिन इस फिल्म में आप एक सबके बॉस हैं। नहीं बॉस, यही कंटेंट चाहिए, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा। नहीं, ये तो नहीं, इतना बुरा हाल भी नहीं है मेरा कि यही चाहिए, और वो एक आइडिया सोचती है, और जब यू नो व्हाट शी इज़ वेरी फैसिनेटेड बाय इज़ द फैक्ट कि एक तो जो मारिया है, जो किरदार मैं निभा रही हूँ, और जो सुल्लू हैं, दे आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट वर्ल्ड्स, सो शी इज़ जस्ट फैसिनेटेड बाय सुल्लू की, यू नो फॉर हर इट्स लाइक, अपनी जैसी लड़कियां मैं बहुत देखती हूँ, पर इनकी जैसे ये जो साड़ी वाली भाभी लेट नाइट शो, सो शी इज़ ट्राइंग टू मेक दिस कॉन्ट्रास्ट कम टुगेदर एंड मर्ज दीज टू वर्ल्ड्स टुगेदर, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एंड यू नो लाइक दे से एन आइडिया इज वर्थ $1 million, उसके बाद आप जो उसके साथ करें, सो देयर यू गो, दोज आर माय $1 million, उसके बाद जो होता है फिर आप वो फिल्म में देखेंगे। So, नेहा, ऑन स्क्रीन तो आप बॉस थी, ऑफ स्क्रीन कौन प्रिटेंड करता था कि वो बॉस है? No, there was only one boss. प्रिटेंड नहीं, you we both pointed to each other. ये इन दोनों की कुछ अपना जैसे साइड ट्रैक, कॉलेज ट्रैक, पता नहीं क्या इनका चलता रहता है, एंड देन बगला देखी फाका, पता नहीं क्या मराठी में बोलेंगे। आज मैंने उनको सिखाई मराठी में कैसे अपनी फिल्म के बारे में बोलना। एक बार बताओ ना, 17 नवंबर मैंने कितने अच्छे से सिखाया। 17 नवंबर ला तुम्हारी सुल्लू बगायला। मैं कॉलिंग अ बॉय ना, बॉयला नहीं, बगायला या fucked up. That's also Marathi, right? That's फक्त स्त्रियांसाठी नाही आहे, फक्त स्त्रियांसाठी सगळ्यांसाठी आहे, फक्त स्त्रियांसाठी नाही आहे, सगळ्यांसाठी आहे. सगळ्यांसाठी आहे. पचला म्हणजे काय हम पचला मांजेकर, महेश मांजेकर. Yeah, really. Okay,
Silk, Vidya Bagchi, अब Sulu. How do you manage, to balance every character which you play on screen? And how do you see as an actor, Neha, what Vidya, what's your, view on her? I'm going to just give the introduction to your answer. I have loved the choices that Vidya has made, the cinema she has done, the contribution that she has, and standing there all by herself, काम से काम करके आगे बढ़ो. It's really spectacular. और for me, the incentive was of course Suresh's script. एक चीज़ वो होती है, दूसरा एक होता है, एक ग्रीड होती है, एक चाह होती है किसी एक एक्टर के साथ काम करने की, जो आप सोचते हैं कि इसके साथ काम करने का मौका मिलेगा ना, it'll add to you. And for me, like a huge reason to say yes to a film like Tumhari Sulu, apart from the niceness of the script and the director and the producers, was Vidya. And that's the feeling and the reaction the entire industry and the audiences have towards her. She's very modest. अब वो ना करके हंसेगी, देख लेनी. Okay, what you have learned from Vidya? Huh? What you have learned from Vidya? I have learned कि जब आपको कुछ अच्छा लगे तो उसकी तारीफ करो, जब आपको कुछ अच्छा ना लगे तो अपना मुंह बंद करके चुप करके एक कोने में जाके स्माइल करो और बोलो ये एसी की तरह मैं जा रही हूँ, मेरा बाल का टचअप कर दो. I on the other hand, if I like something, I will like buddy good stuff. If I don't like something, क्यों तुमने ये किया, क्यों किया, इधर आओ, इधर. I will pull everyone up when something is going wrong, and I think and secondly, जितनी patience विद्या में है किसी में नहीं है, and of course the seriousness and her involvement towards the craft, it's amazing. But she turns off. I've not even seen her trying hard. मैं ये भी नहीं बोल सकती कि बहुत hard working है, क्योंकि वो आती है hello hi coffee लाना ये वाला take hello. So she switches very fast, which is मेरा सिर इतना बड़ा हो गया. Thank you. आप क्या कहना चाहेंगे ना? This question is for you. Yeah, it was for you. I feel very very grateful कि मुझे अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिला है हर फिल्म के साथ. पर मेरे लिए एक्टर की मायने वही हैं. मैंने हमेशा से ये कहा है कि मैं अपने आप को दोहराना नहीं चाहती, और जब तक सुरेश त्रिवेणी जैसे राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आई थिंक आई एम सेट. क्योंकि उन्होंने आज तक किसी ने मुझे इस तरह से इमेजिन नहीं किया था. सब संगीन रोल्स देते आ रहे हैं, या संगीन फिल्म ना भी हो तो इंटेंसिटी होती है, पर इसमें उस तरह की he just thought about me completely differently. और it's great fun because हर फिल्म में अगर आप एक अलग कहानी, एक अलग किरदार पेश कर सकें तो ये मज़ेदार है. एंड आई रियली थिंक ये मेरी खुशनसीबी है कि जो मैं चाहती हूँ वो होता रहा है. अच्छा विद्या मैम, आप आरजे बनना चाहते हैं इस फिल्म में. सुलू जो है वो आरजे बनना चाहती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसको साड़ी वाली भाभी का जो लेट नाइट शो मिल रहा है तो कैसा रिएक्शन रहता है उसका? तो वो किसी को जज नहीं करती, तो उसका है कि अच्छा मुझे काम मिल रहा है, मैं करूँगी, मैंने कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं किया है. तो उसका ये नहीं है कि अच्छा ये अच्छा शो, वो सुलू उस टाइप की है ही नहीं. सुलू किसी के बारे में भी ऐसा नहीं सोचती कि अच्छा है अच्छा नहीं है. अपने बारे में भी नहीं सोचती कि अच्छा मैं ये करूँगी तो मुझे कुछ अर्ली मॉर्निंग शो करना चाहिए, लोग कुछ नहीं. तो कैसे डील करते हो आप जब कॉल्स आते हैं लेट नाइट शो में, तो कैसा फ्रस्ट्रेशन होता है, कैसा? वो देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी 17 नवंबर को. हंसते हो तो एकदम से शॉक हंसी एक बार. Oh God, will you do the yeah, of course I will. हाँ. Hello. सुलू से कौन बात करना चाहता है? ये सच असली है. सौभाग्य है मुझे करने का मौका मिल रहा है. बहुत इंटरेस्टिंग फिल्मी करियर रहा है विद्या का, हम पास से लेकर अब तक. और there's a trend going in the industry where biopic have been made. अगर विद्या पे बायोपिक बनने तो किस शख्सियत को आप समझती हैं would we fit the bill perfectly to play विद्या? It's kind of hard to say, पर अगर आज आप पूछें, she'll probably be the only one who'll play her own. Thank you. मैं नहीं चाहती कोई और करे.
प्रोस्थेटिक्स यूज करके मैं खुद कर लूंगी। आपने मतलब रिसेंटली बेगम जान की थी और सडनली ये रोल आपके सामने मतलब एक एंग्री वुमन का जो रोल था और एक एकदम मिडिल क्लास, हाउ यू फेस दैट थिंग, क्योंकि ये तो एक बड़ा चेंज था। देखिए कभी कभी पब्लिक के लिए भी कि आपको ऐसा देखा है और अभी ऐसा। देखिए एक ही दिन में हम कितने इमोशन से जूझते हैं ना। आप जब उठते हैं आपकी बीवी का चेहरा देखते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं, बहुत प्यार महसूस होता है। आप बाइक पे या गाड़ी पे गाड़ी निकाल के घर से बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक है, कोई आपकी गाड़ी ठोक देता है, आपका मूड खराब हो जाता है। तो उसी तरह एक्टर के लिए जो सिचुएशन है, जो मूड है, उसके हिसाब से हम अपने आप को बदलते हैं। ये आसान नहीं होता, पर क्योंकि मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करती हूँ, मैं ये कर पाती हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि साड़ी वाली भाभी प्ले करके आपके ऊपर एक मिडिल क्लास और ऐसा एजेड नहीं, मैं मिडिल क्लास हूँ। मैं मिडिल क्लास मतलब मेरी परवरिश बहुत मिडिल क्लास रही है और मुझे इस बात का गर्व है। मुझे इस बात की कोई मतलब मुझे दिक्कत नहीं है। चलिए थैंक यू।